السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کا اردو مدرس شیخ ذاکر آج کی میری اس آن لائن ویڈیو کلاس میں آپ سب کا خوش آمدید۔ پیارے بچوں، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کا ہمارا جو موضوع رہنے والا ہے وہ ہے داستان کے حوالے سے۔ اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایک خوبصورت سا شعر آپ کی نظر۔ تیری بندۂ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، تیری بندۂ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں سے نہ شکایت زمانہ۔ پیارے بچوں، ادب کی بات کر رہا ہوں۔ ادب کی بات جب بھی آ جاتی ہے تو شاعرانہ انداز، ٹھیک ہے، اردو کے یہ میٹھے الفاظ، اردو کے یہ میٹھے جملے جو ہیں انسان کے یہ لبوں پر جو ہیں وہ آ ہی جاتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ہم داستان کی۔ آپ کی نصابی کتاب کا پہلا چیپٹر، 10ویں جماعت کی جو کلاس ہے اس کی جو اردو کتاب ہے اس کا پہلا چیپٹر داستان۔ پیارے بچوں، ادب کے بارے میں نے آپ کو پڑھایا۔ اب یہ داستان آپ خود ہی فیصلہ کرو۔ اگر آپ نے ادب کا لیکچر دیکھا ہوگا، یہ داستان افسانوی نثر ہے یا غیر افسانوی نثر ہے؟ پیارے بچوں، میں نے آپ کو کہا تھا نثر دو طرح کی ہوتی ہے، افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر۔ افسانوی نثر اس نثر کو کہتے ہیں جس میں قصے کہانیوں کا التزام کیا جائے، اور غیر افسانوی نثر وہ ہوتی ہے جس میں قصے کہانیاں بالکل بھی نہیں ہوتے۔ تو داستان آپ کے سامنے جو ہے یہ افسانوی نثر کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، ایک صنف ہے۔ اب ہم بات کریں گے نوٹ داستان کے بارے میں۔ داستان کیا ہوتا ہے؟ داستان فارسی زبان کا لفظ ہے پیارے بچوں۔ داستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پرانے زمانے کی تہذیب، پرانے زمانے کا کلچر، ٹھیک ہے، پرانے زمانے کے لوگ، پرانے زمانے کا وقت، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ داستان جو ہے یہ سننے سنانے کا عمل ہے۔ پہلے کیا ہوا کرتا تھا، لوگوں کے پاس وقت بہت ہوا کرتا تھا، لوگوں کے پاس ٹائم بہت ہوا کرتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ آگ کی انگیٹھی جلا کر، ٹھیک ہے، تو 4-5 آدمی سائیڈ میں بیٹھ جاتے تھے، پھر ایک دوسرے کو قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ ابھی ادب وجود میں نہیں آیا تھا، ابھی تحریری طور پر ادب وجود میں نہیں آیا تھا، تو لوگ جو ہے تھوڑا سا انٹرٹین ہونے کے لیے، اپنے دل کو خوش رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، انجوائے کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ میں داستان کی بات کر رہا ہوں، اور داستان کے حوالے سے یہ باتیں بہت اہم ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں کے پاس وقت تھا، لوگوں کے پاس ٹائم تھا، لوگ ایک دوسرے کو قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہی قصے کہانیاں آگے چل کر جو ہے تحریری شکل میں آنے لگی تو ادب وجود میں آ گیا تھا۔ تو جب ادب وجود میں آیا تو داستان کی صنف وجود میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو وہیں سے داستان کا نوٹ بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش ہوا۔ داستان، ابھی میں نے آپ کو کہا کہ داستان جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ داستان میں کیا ہوتا ہے، داستان میں ایسی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پہلی بات آپ یاد یہ رکھو کہ داستان جو ہے اس میں طوالت ہوتی ہے۔ اردو نثر کی سب سے قدیم صنف جو ہے وہ داستان ہے۔ اردو نثر کی جب ادب وجود میں آیا تو اس کے ساتھ ہی داستان، ادب سے تو پہلے ہی داستان جو ہے سننے سنانے کا جو ہے عمل ہے۔ داستان گوئی، میں داستان کی بات کر رہا ہوں، داستان گوئی، داستان گو، ٹھیک ہے، کہانی سنانے والا، گو کہتے سنانے والا، گاف واو گو، داستان گو، ٹھیک ہے۔ یہی کہ پرانے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس وقت بہت ہوا کرتا تھا۔ تو داستان جو ہے یہ نثری افسانوی ادب کی سب سے طویل صنف مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قصہ در قصہ اس میں ہوتا ہے، ایک قصے کو دوسرے قصے کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو ایک طویل قصہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، مہینوں لگ جاتے ہیں اس کو سنانے میں۔ داستان کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ دو پل کے لیے انسان کو وہ مسرت کا سامان مہیا کرنا، وہ خوشی کا سامان مہیا کرنا۔ انسان اپنی خیالی انسان جو ہے اپنی حقیقی جو ایکچوئل انسان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے، انسان غمزدہ ہے، انسان پریشان ہے، تو دو وقت کے لیے انسان جب ان داستان کو پڑھتا ہے یا ان میں گم ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو انہی میں اپنے آپ کو وہ کھو دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان داستان کے فن میں وہ چلا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو تھوڑا سا انٹرٹین ہونے کے لیے وہ داستان پڑھتا ہے۔ داستان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ تفریح ہے۔ میں داستان کی بات کر رہا ہوں، داستان کا بنیادی مقصد تفریح ہے، انٹرٹینمنٹ، ٹھیک ہے۔ داستان میں ایسی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، جن میں موفوق الفطرت عناصر قصے بیان کیے جاتے ہیں، ایسے قصے جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ داستان میں ایسے قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں جو ایکچوئل میں ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے جن، دیو، پریاں، ان کی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ آنکھوں پہ سرما لگا دو تو پورا غائب، ٹھیک ہے، ایسے کپڑے لگاؤ کہ انسان غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی کہانیاں داستان میں جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں، اور داستان میں ایسے کردار ہوتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے۔
इंसानी किरदार आपको कहीं नजर ही नहीं है, जिन देव परियां ऐसे ऐसे किरदार आपको दास्तान में नजर आएंगे, और यही दास्तान की खुसूसियत है। ठीक है, दास्तान में ऐसी कहानियां बयान की जाती हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दास्तान उर्दू नसर की सबसे तवील सिनफ मानी जाती है। दास्तान जो है उर्दू नसर की सबसे तवील सिनफ मानी जाती है। मैंने यहाँ पर लिखा है, दास्तान एक ऐसी तवील कहानी है जिसमें इंसान की हकीकी जिंदगी के बजाय माफूकुल फितरत अनासर बयान किए जाएं। इंसान की हकीकी जिंदगी के बजाय हकीकत से हटकर, हकीकत से मुंह फेर कर जो है दास्तान के बारे में बातें बयान की जाती हैं। हकीकत को बिल्कुल भी बयान नहीं किया जाता। माफूकुल फितरत किस्से बयान किए जाते हैं, ऐसे किस्से जिनका इंसान के जहन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता है। इंसान परेशान हो जाता है आजकल के ज़माने में जब ये बातें सुनता है कि कौन जिन कौन देव परी ने उठा लिया, ये हुआ वो हुआ। ऐसी कहानियां दास्तान में हुआ करती थी। आज अगरचे दास्तान का चलन खत्म हो गया है प्यारे बच्चों, आज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो है मसरूफियात बहुत हैं। आज इंसान के पास इतना वक्त नहीं है कि 1 महीना या 2 महीने 3 महीने लगा कर किसी दास्तान को पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस दास्तान की खुसूसियत को, दास्तान को जब हम पढ़ते हैं, दास्तान को समझने की कोशिश करते हैं, दास्तान सिनफ के एतबार से जब हम इसको देखते हैं, तो पुराने ज़माने की जो दास्तानें लिखी गई हैं, खासकर जो तहरीर हो चुकी हैं, उनको देखकर, उनको परख कर हम दास्तान की खुसूसियत बयान करते हैं। तो दास्तान जिसमें माफूकुल फितरत, लफ्ज़ माफूकुल फितरत दास्तान के हवाले से बहुत अहम रहता है। जब भी दास्तान की बात आए, दास्तान में माफूकुल फितरत लफ्ज़ ज़रूर आता है। तो इस घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। माफूकुल फितरत लफ्ज़ है क्या? जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। ऐसे किस्से जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। ठीक है, दास्तान वो रोमानी कहानी है जिनमें ख्याली वाक़ात का बयान, माफूकुल फितरत, हुस्न इश्क के वाक़ात, ठीक है, हादसात की बहुतात, इसका मकसद कारी को कुछ पल के लिए मसरत का सामान मुहैया करना है। जो मैंने अभी बातें लिखी हैं, दास्तान में क्या होता है कि इनमें ख्याली किस्से बयान किए जाते हैं, माफूकुल फितरत अनासर किस्से बयान किए जाते हैं, इनमें हुस्न इश्क की बातें होती हैं। ठीक है, पुराने ज़माने में बादशाह लोग, शहजादी, बादशाह, इनकी कहानियाँ जो हैं वो बयान की जाती हैं, उनके जज्बात को उभारा जाता है। ठीक है, कहीं पे कोई हादसा हो गया, उसकी बहुतात यानी कि ऐसी बातें जो हकीकत में बिल्कुल होती नहीं है, ऐसी बातों को वहाँ पर बयान किया जाता है। दास्तान अगर बात करें, इसका मकसद क्या होता है, खासकर दास्तान का मकसद क्या है? दास्तान का मकसद यह है, कारी जो होता है, पढ़ने वाला जो होता है, कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए उसको वो खुशी महसूस होती है दास्तान पढ़कर। ठीक है, दास्तान की तवील और पेचीदा सिनफ को, कहानी की तवील और पेचीदा सिनफ को दास्तान कहा जाता है। तवील और पेचीदा, तवील क्या है? तवील यानी कि लंबा। दास्तान जो है इसकी खुसूसियत ही एक है, बाकी असनाफ से हटकर। नावल की बात करो, आप अफसाने की बात करो, ठीक है, आप ड्रामे की बात करो, बाकी जो भी सिनफ होगी, लेकिन जब हम यहाँ पर दास्तान की बात करते हैं, एक तो ये उर्दू अदब की सबसे कदीम तरीन सिनफ है और दूसरी ये तवील सिनफ है। दास्तानें बहुत लंबी होती हैं जिसमें पढ़ने में इंसान को जो है वो महीनों लग जाते हैं। ठीक है, तो दास्तान यही है। दास्तान क्या होता है? नोट के हवाले से अगर हम देखें, दास्तान फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। दास्तान में ऐसे किस्से कहानियाँ बयान किए जाते हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। ठीक है, माफूकुल फितरत अनासर बयान किए जाते हैं। और दास्तान की अगर बात करें, अज्जाए तरकीबी, यहाँ पर मैंने बयान किया है अज्जाए तरकीबी के बारे में भी। ये देखिए, दास्तान के अज्जाए तरकीबी कौन कौन से हैं? अज्जाए तरकीबी क्या होता है प्यारे बच्चों? अज्जाए तरकीबी मैं कहूँगा दास्तान के अज्जाए तरकीबी, नावल के अज्जाए तरकीबी, गज़ल के अज्जाए तरकीबी। ये अज्जाए तरकीबी क्या होता है? अज्जा यानी कि एक जुज़, एक पार्ट, अज्जाए तरकीबी। ठीक है, जुज़ की जमा अज्जा, अज्जाए तरकीबी कहते हैं ऐसी चीज़ें जिनका होना ज़रूरी हो। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? दास्तान। अब दास्तान में किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? जब मैं दास्तान को समझा रहा था तभी आपको पता चल गया होगा कि दास्तान की खुसूसियत क्या है, दास्तान में किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली बात, माफूकुल फितरत अनासर, ऐसे किस्से जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, हकीकत बिल्कुल भी ना हो। ठीक, पहली चीज़ आती है प्लॉट। जब आपके पास कोई दास्तान, ठीक है, कोई कहानी सेट है, जब दास्तान लिखने वाले ने अपने जहन में वो कहानी जो है वो रख ली है कि मुझे क्या लिखना है, फिर उसको ये भी साथ में अपने जहन में रखना है कि मुझे अगर दास्तान लिखनी है तो दास्तान की खुसूसियत जो होती है वो तवालत है, ये तवील होनी चाहिए। तो उसके लिए प्लॉट बड़ा ज़रूरी है। प्लॉट क्या होता है? तो पहली चीज़ आपके सामने आ गई दास्तान के अज्जाए तरकीबी के हवाले से, प्लॉट। प्लॉट क्या होता है प्यारे बच्चों? जब एक कहानी में वो जो छोटे छोटे किस्से होते हैं ना, वो छोटे छोटे कहानी के जो पार्ट होते हैं ना, जब वो आपस में मिलते हैं, जब वो आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, उसी को प्लॉट कहा जाता है।
कहानी को तरतीब देना, बात समझ में आ रही है ना? कहानी को तरतीब देना प्लॉट कहलाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम एक तुर्किश ड्रामा देखते हैं अर्तुगरुल गाजी, या हम उस्मान देखते हैं, ठीक है, या आप अक्सर लड़कियां जो हैं वो पाकिस्तानी ड्रामे देखती हैं। अब क्या होता है, वो पाकिस्तानी ड्रामे जो है तो उसका एक एक पार्ट आता है, वो एक एक पार्ट जो होता है वो आपस में कनेक्टेड होता है, वो आपस में जुड़ा हुआ होता है, उसको तरतीब दी जाती है। अगर तरतीब नहीं होगी, क्या देखने वाले को कोई मजा आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसका जहन तो उलझ जाएगा, भाई मैं ये क्या देख रहा हूं, ये क्या हो रहा था और ये क्या हो रहा है। लेकिन जब कहानी को लिखने वाला तरतीब देता है, ये लिखने वाले पर मुनस्सर है कि किस तरीके से कहानी को तरतीब दिया जाए, और वो तरतीब देना ही प्लॉट कहलाता है। ठीक है, बाहुबली ने, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? प्यारे बच्चों, पहली मूवी आई थी वो बाहुबली, ठीक है, उसमें जब हमने देखा कि कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया, वहीं पर मूवी का एंड कर दिया। जब दूसरा पार्ट आया, वो दूसरा पार्ट उसके साथ कनेक्टेड था, क्योंकि हमारे जहन में एक सवाल था, भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? जब हमने दूसरा पार्ट देखा तो हमें वो पूरा समझ में आ गई, भाई यही प्लॉट है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, प्लॉट क्या है? जब एक तवील कहानी है, आपके पास एक तवील किस्सा है, उसमें छोटे छोटे किस्से होंगे ना, उसमें छोटे छोटे पार्ट होंगे ना, उन पार्ट्स को, उन किस्सों को आपस में जोड़ना प्लॉट कहलाता है। और एक कहानी का प्लॉट जो होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए। वो किस तक मुनस्सर है? वो लिखने वाले तक मुनस्सर है, वो किस तरीके से प्लॉट को तरतीब देता है। तो दास्तान के लिए प्लॉट का होना जरूरी है। यही प्लॉट, एक चीज जहन में रखना, ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आपको 3 नोट में पढ़नी है आगे जाकर। आपको नावल पढ़ना है तो वहां पर प्लॉट है, आपको अफसाना पढ़ना है तो वहां पर प्लॉट है, और आपको अगर नॉवलेट पढ़ना है तो वहां पर भी प्लॉट है। ड्रामे में भी प्लॉट आपको देखने को मिलता है। तो प्लॉट क्या होता है? किसी कहानी में वो जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ठीक है, उनको तरतीब देना प्लॉट कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब हम किसी का भी नोट पढ़ेंगे, हर एक का प्लॉट जो होगा वो अलग होगा, उसको बरतने का अंदाज अलग होगा। तो हमने प्लॉट भी देख लिया, हमने तवालत भी देख लिया, तो दास्तान के लिए जरूरी होता है। दास्तान के लिए तवालत जरूरी होती है, जो मैंने पहले कहा, इसकी एक शर्त तवालत है। दास्तान तवील होती है, दास्तान लंबी होती है। ठीक है, किरदार निगारी बेटा बहुत जरूरी, किरदार निगारी दास्तान के लिए बहुत जरूरी है। एक कहानी को आगे चलाने वाले कौन होते हैं? किरदार होते हैं कहानी को आगे चलाने वाले, प्यारे बच्चों। लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं दास्तान की, तो इसके किरदार क्या है? इसके किरदार जो होते हैं वो हकीकी जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक उनका नहीं होता है। मेरी बात याद रखना, हकीकी जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। जिन, क्या आपने कभी अपनी आंखों से जिन को देखा है? परी अपनी आंखों से देखा है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हमने इनको बिल्कुल भी नहीं अपनी आंखों से देखा है प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही किरदार जो है दास्तान में बयान किए जाते हैं, या कभी दास्तान में जो ख्याली किरदार को भी बयान किया जाता है, जो किरदार होने की शक्ल में होते ही नहीं, जैसे इश्क को किरदार बनाया जाता है, मोहब्बत, दिल, ऐसे किरदारों की कश्मकश, इनकी गुफ्तगू फिर आगे चलती है। ठीक है, तो कहानी में, इस दास्तान में किरदार निगारी का होना जरूरी है, लेकिन इसमें ऐसे किरदार बयान किए जाते हैं प्यारे बच्चों जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है, बिल्कुल भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। जैसे जिन, देव, परी, ऐसे किरदार आपको दास्तानों में देखे जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है किरदार निगारी के बाद मुकालमा भी आता है। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास कोई कहानी है, कहानी में कोई किरदार है, तो जब तक ना किरदार आपस में बातचीत करेंगे तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, जो किरदार होते हैं जो आपस में गुफ्तगू करते हैं, वो जो डायलॉग्स होते हैं आपस में इधर उधर वो बातचीत करना, ठीक है, वो कहलाता है मुकालमा। ठीक है, मुकालमा होना भी जरूरी है, तब जाकर आपकी कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, इश्क मोहब्बत की कहानियां, इश्क मोहब्बत, जैसे मैंने कहा था कि बादशाह, शहजादी, बादशाह की दास्तानें, इश्क मोहब्बत की दास्तानें, ये चीजें भी दास्तान के लिए बड़ी जरूरी हो जाती हैं। माफूकुल फितरत अनासर किस्से, ये बात दास्तान की सबसे अहम खुसूसियत, माफूकुल फितरत अनासर किस्से, ऐसे किस्से जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक ना हो। लिखने वाले को अपने जहन में ये रखना है कि मुझे ऐसे किस्से बयान करने हैं जो हकीकत पर मबनी नहीं होंगे। मंजर कशी, जब आप किसी दास्तान में कोई मंजर दिखा रहे हो, ठीक है, जब आप किसी दास्तान में कोई मनाज़िर फितरत की बात कर रहे हो, कोई कुदरती नज़ारे की बात कर रहे हो, ठीक है, किसी महल का मंजर दिखा रहे हो, ठीक है, पुराने ज़माने की किसी बात का जिक्र कर रहे हो, लेकिन आपको इस तरीके से बयान करना है, वो मंजर निगारी इस तरीके से होनी चाहिए कि कारी जो होगा, पढ़ने वाला जो होगा, उसको यूं महसूस हो कि मैं अपनी आंखों से ये देख नहीं रहा हूं। ठीक है, मैं ये कहानी देख ऐसे नहीं, बल्कि ये लग रहा है कि मैं वहां पर बैठा हूं, एक्चुअल मेरी आंखों के सामने ये सब हो रहा है।
ठीक है, हकीकत में ऐसा हो रहा है, ये मंजर निगारी होती है। मंजर निगारी का बड़ा अहम किरदार रहता है लिखने के हवाले से। जब लिखारी लिखता है तो मंजर निगारी को बड़ा खूब देखकर लिखता है कि देखने वाले को ये लगे कि जब मैं कोई ड्रामा देख रहा हूँ, जब मैं कोई दास्तान पढ़ रहा हूँ किताब पर, पढ़ते पढ़ते यूँ मुझे महसूस हो कि मैं किताब तो नहीं पढ़ रहा हूँ यार, मैं एक्चुअल में उस जगह पर हूँ जहाँ पर ये सीन है, मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सब। ये होती है मंजर कशी, ठीक है। वहीं पर जब मैंने अदब के हवाले से बात की थी कि अदब का एक बुनियादी मकसद तफरीह होता है, बेटा तफरीह होता है, लेकिन तफरीह के साथ साथ कोई मालूमात भी होती है। किसी अदीब ने, बेशक इसमें माफूकुल फितरत अनासर शामिल होते हैं दास्तान में, बेशक ऐसी कहानियां जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है, ऐसे किस्से जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जहां पर लिखने वाला एक कारी को, पढ़ने वाले को इंटरटेन कर रहा है, वहां पर इंटरटेन के साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, कुछ मालूमात भी दे रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर हम पुराने ज़माने की किसी भी दास्तान के बारे में बात करें, जिस ज़माने की वो दास्तान होगी, उस ज़माने की तहजीब, उस ज़माने का रस्म व रिवाज, उस ज़माने की सियासत, बादशाह कैसे कपड़े पहनता था, पुराने ज़माने की कुछ ना कुछ हमें वहाँ पर अक्स होता है, कोई ना कोई बात हमें सीखने को मिलती है, कोई ना कोई अखलाकी मौजू, कोई ना कोई नसीहत बड़ी बात हमें ज़रूर देखने को मिलती है। और ये थे दास्तान के अज्जाए तरकीबी। दो चीज़ें हमने देख ली। दास्तान किसको कहते हैं? दास्तान एक ऐसी नसरी कहानी जिसका हकीकत के साथ बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं होता है। तवालत, ठीक है, इसकी अहम शर्त है, ठीक। फिर दास्तान के अज्जाए तरकीबी जिसमें प्लॉट आता है, तवालत, किरदार निगारी, मुकालमा, इश्क मोहब्बत, मनाज़रत फितरत, ठीक है, कि मंजर कशी, माफूकुल फितरत अनासर किसे, ये सब अज्जाए तरकीबी में आते हैं। दूसरा आपके सामने सवाल खड़ा होता है कि दास्तान जो है इसका चलन कब से शुरू हुआ। तो आपके पास सवाल खड़ा हो गया दास्तान का आगाज़ व इर्तिका। प्यारे बच्चों, ये मैंने लेक्चर इसलिए लिया ताकि ये जहन नशीन आपको ये चीज़ें हो जाएं, ठीक है। अब यही चीज़ें मैं यहाँ पर बयान करने की कोशिश करूँगा जो आपकी निसाबी किताब पर दिया गया है। अब गौर कीजिए, यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उर्दू की नसरी असनाफ में दास्तान को काफ़ी अहमियत है। जितनी भी नसरी असनाफ है, नावल है, ड्रामा है, अफसाना है, उन सब में से अगर देखा जाए दास्तान को काफ़ी अहमियत हासिल है, ठीक है। हमारे यहाँ नावलों से पहले दास्तानों का रिवाज था, बेशक क्योंकि सबसे कदीम सिनफ तो हमारे पास दास्तान ही है। दरबारों में दास्तान को मुलाजिम रखे जाते थे जो बाकायदा मजलिसों में दास्तानें सुनाया करते थे। ये पॉइंट मैं वहां पर भूल गया बोलना कि पुराने जमाने में महल जो हुआ करते थे, उनमें जो बादशाह हुआ करता था वो अपने महलों में दास्तान को मुलाजिम रखा करता था, दास्तान सुनाने वाला, ठीक है। उनको तनख्वाह दी जाती थी ताकि वो हमें इंटरटेन करें कुछ वक्त के लिए, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैं इसके हवाले से आपको एक कहानी बता दूं यहाँ पर। प्यारे बच्चों, मैं दास्तान की बात कर रहा हूँ कि बादशाह लोग अपने दरबार में दास्तान को मुलाजिम रखते थे, ठीक है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह जो था, मैंने ये बात कहीं पर पढ़ी थी, मेरे जहन पे आ गई। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह ने कहा कि मुझे एक ऐसी लड़की के साथ शादी करनी है जो मुझे ऐसी दास्तान सुनाए जो बिल्कुल भी ख़त्म ना हो। अब बादशाह था तो कोई भी उससे शादी करने की ख्वाहिश रख सकता था, तो सबको दिलचस्पी थी। तो बहुत सारी औरतें आई, उन्होंने एक कहानी शुरू की, अगले दिन उसकी कहानी खत्म हो गई तो बादशाह ने उसको कत्ल कर दिया, ठीक है। मैं दास्तान की रवायत बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। ये कोई हकीकत पर मबनी बात नहीं है, मैं आपको दास्तान समझा रहा हूँ। फिर दूसरे दिन फिर से एक और औरत आती है, वो दास्तान सुनाती है, फिर 2-3 दिन 4 दिन उसकी कहानी रही तो फिर से खत्म, आधी तो उसका भी कत्ल कर देता है बादशाह। फिर एक ऐसी औरत आती है जो सुबह अपनी दास्तान को शुरू करती है, जब तक बादशाह को नींद नहीं आती है तब तक वो अपनी दास्तान को खत्म नहीं करती है। तो बादशाह को नींद आ गई, वो भी सो जाती है बड़े आराम से। मेरे कहने का मकसद यह है, दास्तान में तवालत होती है, तो बादशाह लोग अपने आप को इंटरटेन करने के लिए दास्तान को मुलाजिम रखा करते थे। प्यारे बच्चों, तो यहां पर लिखा गया है इन दास्तानों का मकसद जो होता था, जो मजलिसों में सुनाई जाती थी, सामाइन को कुछ देर के लिए फराद व मसरत का सामान मुहैया करना। सामाइन यानी कि देखने वाले कुछ देर के लिए, कुछ मिनट से, कुछ वक्त के लिए आप इस कमरे में बैठे हो, कुछ वक्त के लिए आप बाहर की दुनिया को भूल जाओ और आपके सामने में कोई ड्रामा पेश कर रहा हूँ। कुछ वक्त के लिए आपकी जिंदगी में इतने गम है, खुदा न खास्ता इतनी परेशानियां हैं, लेकिन 5-10 मिनट के लिए मैं आपको यहाँ पर एक ड्रामा पेश कर रहा हूँ, वो 5-10 मिनट आप बाहर की दुनिया भूल जाते हो। ये होता है दास्तान का बुनियादी मकसद। प्यारे बच्चों, ये दास्तानें किस्सा दर किस्सा हुआ करती हैं जो मैंने आपको समझा दिया, और दास्तान को इन्हें कस्तवार महीनों सुनाया करता है, जो मैंने बात अभी बोली, महीनों सुनाया करता था क्योंकि तवालत इसमें होती है, ठीक है।
इनमें ज्यादातर ख्याली किस्से होते हैं, माफूकुल फितरत अनासर किस्से यानी जिन, देव, परियां, ठीक है, मारकुल कूल कारनामे यानी कि ऐसे कारनामे, ऐसी बातें जिनका जहन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता है। अपनी क्रिश मूवी देखी होगी, कैसे ऋतिक रोशन छलांग लगाता है, कैसे जहाज को पकड़ता है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, वो ऋतिक रोशन की बात, क्रिश मूवी की बात। प्यारे बच्चों, किस तरीके से उस मूवी में दिखाया जाता है, वो जुबान निकाल कर वो आइसक्रीम खाना, वो दीवार को पंच लगाना तो पूरी दीवार गिर जाना। क्या आपका जहन आपको इजाजत देगा? क्या यह हकीकत है? बिल्कुल भी नहीं। तो यही हुआ महरकुल कूल, ठीक है। कारनामे हैरत अंगेज असलूब में बयान किए जाते हैं, बज़ाहिर इन कहानियों का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। प्यारे बच्चों, ये सारी बातें अभी मैंने आपको एक लेक्चर के तौर पर सारी बातें बता दी। अब अपने दूसरे मौजू पर आते हैं, उर्दू दास्तान का आगाज और इर्तिका क्या है। उर्दू में दास्तान का रिवाज हमें उस जमाने से मिलता है जब इसमें तसनीफ और तालीफ का काम शुरू हुआ, जब लिखने और तर्जमा करने का काम शुरू हो गया, जब किताबें लिखने और किताबों को तर्जमा, तसनीफ कहते हैं लिखना और तर्जमा कहते हैं, सॉरी तालीफ कहते हैं तर्जमा, ठीक है। जब इसमें तसनीफ और तालीफ का काम शुरू हुआ तब से लेकर दास्तान का रिवाज जो है वो शुरू हुआ था। जनूबी हिंद में लिखी गई मुल्ला वजी की सब्रस, ठीक है, 1635 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर यह सब्रस कहानी जो है मुल्ला वजी ने लिखी थी। उर्दू की कदीम तरीन दास्तान है ये, जिसमें इश्क और अक्ल की कश्मकश को बड़े दिलचस्प असलूब में बयान किया गया है। इसमें किरदार कौन थे, जहां पर मैंने बात की थी कि ऐसे किरदार जिनका हकीकत के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं होता है, रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। यानी कि देखो, यहां पर अक्ल और इश्क को कैरेक्टर बनाया है एक दास्तान में। अक्ल और इश्क को यूं लगेगा कि ये दोनों एक कैरेक्टर, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, ऐसा लगेगा ये इंसान है। अक्ल और इश्क की दास्तान को इस कहानी में बयान किया गया। उर्दू की पहली नसरी दास्तान, मैं मंजूम दास्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नसरी दास्तान की बात कर रहा हूं। ये आपके पास सब्रस आती है 1635 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर मुल्ला वजी ने ये दास्तान लिखी है। शुमाली हिंदुस्तान में लिखी गई उर्दू की पहली दास्तान, ये तो हम बात करेंगे जनूबी हिंद में उर्दू की पहली दास्तान। अगर शुमाली हिंद की हम बात करें, यहाँ पर किस्सा महर अफरोज दिलबर है, ये तहसीन की लिखी। उसके बाद तहसीन की नौ तर्ज मुरस्सा आती है, एक उम्दा दास्तान है। इसकी अबारत मुसज्जा व मुकफ़ा की वजह से खासी मुश्किल है। तहसीन की नौ तर्ज मुरस्सा जो है, ये दास्तान जो है ये काफ़ी मुश्किल है, यानी कि शायराना अंदाज में इसमें बातें बयान की गई है, ठीक है। काफिया, रदीफ, ऐसी चीज़ें, मुकफ़ा और मुसज्जा यानी कि तो बहुत मुश्किल इबारत इसकी थी। फिर इंशा की कहानी, रानी केकती की कहानी, ये इंशा की एक दास्तान है। और रजब अली बेग सरवर की दास्तान फसाना अजायब भी उम्दा कारनामे हैं। प्यारे बच्चों, ये मैं बता रहा हूँ दास्तान का आगाज़ और इर्तिका। सबसे पहली बात मुल्ला वजी की सब्रस, ठीक है, जो अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर 1635 ईस्वी में लिखी गई। उसके बाद हमने दूसरा नाम देखा था किस्सा महर अफरोज दिलबर। उसके बाद हमने देखा तहसीन की नौ तर्ज मुरस्सा। स्टेप वाइज आप इसको याद रखने की कोशिश करें। इंशा की रानी केकती की कहानी और रजब अली सरवर की दास्तान फसाना अजायब, ये एक उम्दा कारनामे हैं उर्दू दास्तान के हवाले से। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज का भी अहम किरदार है दास्तान के हवाले से। जब फोर्ट विलियम कॉलेज का वजूद आता है, जब फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम होता है, फोर्ट विलियम कॉलेज पर एक अलग लेक्चर मैं आपको दूंगा, यहां पर तफसील से बताने की कोई गुंजाइश नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में अलग लेक्चर आपको दूंगा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के कयाम के बाद, जब इसका कयाम होता है, जब फोर्ट विलियम कॉलेज बन जाता है, अंग्रेजों के दौर की बात हो रही है, तो उर्दू में बहुत सारी दास्तानें लिखी गई। फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी भी गई और तर्जमा भी की गई। प्यारे बच्चों, इसमें तर्जमा भी है। इस इदारे का फोर्ट विलियम कॉलेज का सबसे अहम कारनामा मीर अमन की बागो बहार रहती है। मीर अमन ने बागो बहार लिखी थी और बागो बहार को इस अंदाज में लिखा था कि वो उसकी अपनी तसनीफ मालूम होती है, असल में वो तर्जमा था, ठीक है। असल में ये तहसीन की नौ तर्ज मुरस्सा जो मुश्किल और मुसज्जा और मुकफ़ा जुबान में लिखी गई थी, लेकिन मीर अमन ने इसको बिल्कुल सीधी सादी जुबान में आम लोगों तक पहुंचा दिया। और पढ़ने वाला जब इस दास्तान को पढ़ता है यूं महसूस होता है ये तर्जमा नहीं है बल्कि ये तबज़ात दास्तान है मीर अमन की, ठीक है। प्यारे बच्चों, जो जुबान की खूबी की वजह से तर्जमा होने के बजाय तबज़ात मालूम होती है, तबज़ात इनकी खुद की लिखी हुई, और इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद इसकी मकबूलियत में कोई फ़र्क नहीं आया। तो इसकी मकबूलियत में कोई फ़र्क नहीं आता। फिर उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद हम देखें तो शेर अली अफसोस की आराइश महफिल, हैदर बख्श हैदरी की तोता कहानी, फोर्ट विलियम कॉलेज की ये दास्तानें हैं। इसके बाद 19वीं सदी का दौर आता है, ठीक है। 19वीं सदी में क्या होता है, जैसे 19वीं सदी के आखिर में जब नई तहजीब की चकाचौंध ने उर्दू ज़ुबान और अदब को नई मंजिलों की तरफ मतवज्जा किया, तो इसका असर दास्तान पर पड़ा।
میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. میں نے بات کی نئی تہذیب کی چکا چوند. جب ہم اپنی تہذیب کو بھول جاتے ہیں, جب ہم اپنے رسم و رواج کو بھول جاتے ہیں, پہلے زمانے میں یہ رسم و رواج تھا کہ لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے کو کہانیاں سنایا کرتے تھے, ٹھیک ہے, تفریح کے طور پر ایک دوسرے کو لوگ کہانیاں سنایا کرتے تھے. لوگوں کے پاس موبائل فون نہیں تھے, لوگ اپنا وقت جو تھا ایسے ہی جو تھا وہ اپنا وقت مصروف ہوتے تھے اس وقت میں. تو یہ نئی تہذیب جب آئی, جب برٹشرز کا دور آتا ہے, ٹھیک ہے, نئی نئی چیزیں جب دیکھنے کو ملتی ہیں, تو اس کا اثر جو ہے وہ داستان پر بھی پڑتا ہے. داستان پر کیا اثر پڑا کہ لوگوں نے یہ سوچا اب ہمارے پاس وقت جو ہے وہ کم ہے, ٹھیک ہے, وقت کی قلت ہے, تو داستان کا زوال ہونا شروع ہو گیا. پیارے بچوں, نئی تہذیبی ثقافتوں نے انسان کو خیالی دنیا سے نکال کر حقیقی زمین پر چلنے پر مجبور کیا. یعنی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہم یہ مافوق الفطرت عناصر کس سے کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی, ٹھیک ہے, ہم یہ ایسی باتیں ایسی کہانیاں کیوں پڑھ رہے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ہم اصلیت پر کیوں نہیں آ رہے ہیں, ہم ایسی کتابیں ایسی داستانیں کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہے. تو یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ گئی. جب یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ گئی تو داستان جو ہے اس کا ایرو نیچے آنے لگا, داستان کا زوال ہونے لگا. پیارے بچوں, ٹھیک ہے, جس سے اردو ادب میں یہ صنف زوال کا شکار ہوئی. تاہم یہ کہنا بیجانا ہوگا کہ کہانی کی دنیا میں آج بھی ہمیں جتنی پیش رفت نظر آتی ہے وہ ہرگز ممکن نہ ہوتی اگر داستان کا بے پناہ سرمایہ ہمیں ورثے میں نہ ملا ہوا ہوتا. وراثت میں اگر پرانے زمانے میں ہمارے دادا پردادا یا جو بھی ٹھیک ہے اینسسٹرز ہمارے جو داستان کے حوالے سے جڑے ہوئے تھے, ایک دوسرے کو کہانیاں سنایا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اگر یہ چیزیں ہمارے ساتھ نہ جڑی ہوئی ہوتی تو یہ کہانی کا عنصر ہمارے پاس اتنا دلچسپ نہ ہوتا. پیارے بچوں, یہ صرف اسی کی وجہ سے ہے کہ ہمارے اینسسٹرز یا پرانے زمانے میں داستان گوئی کا جو چلن تھا اس کی وجہ سے داستان جو ہے آج بھی اہمیت کے حامل ہے. تو یہ تھا پیارے بچوں اردو داستان کے حوالے سے. داستان کیا ہوتا ہے, داستان کی تعریف, داستان کے اجزائے ترکیبی اور داستان کا آغاز و ارتقاء. یہ آپ کا داستان کے بارے میں نوٹ ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.